Joining today's program organized by Friends of India Society International. I'm Vivek Sinha, one of the General Secretaries of FISI, welcoming you to this great conference to discuss one of the divine plan for Bharat to be a Vishwaguru. The Friends of India Society International has been conducting seminars, workshops, and presentations by distinguished persons on matters of India and the world at large. Friends of India Society International plans to educate the Friends of India all over the world in support of India causes and the world togetherness. In this series, we have a very dynamic presentation on this topic by Dr. Sudhanshu Trivedi, and today's topic is India's march towards becoming Vishwaguru. It's just a request during this program, please keep your cell phone on mute and during Q&A as well. At this time, I have a pleasure to request our esteemed leader, the International President of Friends of India Society International, Dr. Bhishma Agnihotri. So, Agnihotri ji. Namaskar, Sudhanshu ji. Many thanks to you for coming over. I know you are very busy person. And for all good of all of us, you have done so many good things, informed everybody, educated everybody, and inspired everybody around you. It is really a pleasure that you are here. Namaskar again. So it is a doubly honor that a person of your eminence, a great scholar, a great academician, a great in science and also inspirational every way. And you have been, I've been watching your programs almost diligently. I feel that, pardon? So therefore, I think this is the one, when we talked about you, you're coming here to the program, we thought who else will know more than you know that when Bharat is going to be Vishwaguru. So let us see what your feeling is about the whole topic and how we can be inspiring other people to move forward for this great journey for becoming world leader in the real sense, Vishwaguru. So again, Dr. G, I thank you very much. And I remember good times with you. And now we are looking forward to your future role, further role in the development of India and the world at large. Thank you very much. Now you are getting my voice clear? Yes, please. Respected Bhishma Agnihotri ji, Purohit ji, and all esteemed audience and viewers which are participating in this program. And the topic is that how and when India may become Jagat Guru. I think this title itself incorporates two words, Jagat and Guru. And these two words itself demarcates India from rest of the world. Number one, the word Jagat, as some of you who must be knowing the Sanskrit Vyakaran or the Sanskrit grammar, they must be knowing that the Jagat is a word for the world of this earth. And Jagat is made out of two words, Ja and Gat. Ja means the moment it came into being from the birth. And Gat means motion. So which is in perpetual motion from the time of birth is Jagat, which is the word for this entire nature, entire world and the earth.
So those who have tried to teach us that the earth moves in the space around the sun, though their culture has told that the earth is stationary, but on the contrary, the word Jagat itself signifies that the entire earth is moving from the time of its inception, from the time of its birth. And then comes the word Guru. Guru is made up of two words. Gu means darkness, andhakar, and Ru means to dissolve it, uska nivaran karna. A Sanskrit shlok which gives the definition of Guru is Gu Shabdastu Andhakarasya, Ru Shabdas Tan Nivartika, Andhakara Nivartitvat, Guru Ritya Vidhiyate. Means Gu is the word for darkness, Ru is the word for emancipation or eliminating. And so Guru is the person who removes darkness from you. And this is the fundamental difference between us and the rest of the world as far as the teaching, learning is concerned. The West considered that anybody can become Guru if he is capable of providing or imparting some information regarding some subjects and in a way enhancing the knowledge of its disciple. But in our concept of Guru, the fundamental paradigm is totally different. We consider that everybody and every human being is full of knowledge itself. Only the cover of Maya, or you can say the imposition of the worldly affairs, has put up certain darkness over the immense light which all we are possessing as our basic nature. So what Guru does, he just removes the darkness and your original state of consciousness is just visible to you. That's why the word Shishya is associated with Guru. And Shishya word is an adjective of the word Shesh. Shesh is a word which is used in Sanskrit, Hindi, and most of the Indian language as a residual. Shishya is the adjective of Shesh. It means if Guru removes the darkness, so whatever is residual, whatever is left is Shishya. And whatever is left, it's absolute, confirmed infinity. And that's why the famous shlok about Guru Shishya is Purnamidam Purnamadaha Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. It means I am complete and infinite. He or she is complete or infinite. And I have to take out from him or from her, from my disciple, infinite, and the residual will always be infinite. Because you take out infinity out of the infinity, the residual will be infinity. I just want to tell you that there is a fundamental difference in our thinking as far as the teaching, learning, and realization is concerned with the West. So that's why our country becomes totally different. That's why we doesn't aspire to become the superpower. We want to become Guru. In this context, I would just like to quote on 31st of December 1999, then President of US was giving an interview to CNN, Bill Clinton. And the question was asked that the 20th century is ending and US remain the superpower of the economic superpower of the 20th century. How do you perceive the future of US in the 21st century? And you can check it that the Clinton replied that we were the economic superpower of 20th century. We hope that we will remain the economic superpower of 20th century. But there are two countries, India and China, which are having an enormous potential to emerge on the economic scenario in 21st century. And then he said, out of which India is having such a potential that he can or it can become equal to US. अब आप सोचिए ये बात US president कह रहा है. Now I will take you back 1 century back. 1901. Just 1 year before Swami Vivekananda, when he has left his body, he has went, I read in a book that he went to Amarnath
Then he done meditation and he came out. And then he said कि मैंने ध्यान में देखा है कि भारत माता दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वह समय केवल 1 शताब्दी में। इंग्लिश में कहें तो आई हैव सीन दैट द भारत माता with all its glory which it was having in past, with all its blissful light, is all set to ascend to the throne of the world to guide and motivate, and the time is just 1 century. So 1 century completes on 2001, and Bill Clinton said in 1999, and we are sitting in 2022. I think you would have experienced the difference what India has seen in the last 20 years. The time when 20th, 21st century has emerged. So I just want to say कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके जो वचन होते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो देखा था वो सही था। अब आप ये समझिए कि ये होगा कैसे, how it will happen. Now if you look at today's entire world, आज आप पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो देखिए। There is a conflict in each and every part of the world. You first start that there is a conflict with nature. Ecological imbalances and environmental problem is that problem which every country in the world is facing, because it is equally applicable on any part of earth, so nobody can say that we are not affected. Second thing, conflict and terrorism. Most of the world is being affected. And then what it says that there is a difference in thinking as far as the nature and the human race is concerned. This is a compartmental separatist approach, that we are different and the nature is different. And that's why the concept from where this entire development has emerged, if you remember, Aristotle has written a book, Nature, in which he has written all the elements of nature are for the service of mankind. And Francis Bacon and René Descartes says that all elements will be of nature will be in wilderness if the man is not there. Even they went to the extent of saying that man should become the possessors and masters of nature. And not only this, they have used the word that a man should be able to subdue nature. So this is the mindset. Then there is a conflict between the nature and the man. So ecological imbalance has to be there. And from where we will get the clear answer. In our culture, in Vedas, it is said, Matah Bhumi Putroham Prithivya. जब हम पृथ्वी को माता मान लेते हैं तो माता पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, माता का शोषण नहीं हो सकता, माता से तो पोषण लिया जाता है। तो एक फंडामेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट का एक सोल्यूशन हमारे पास है। नेक्स्ट, अब यही जब हम विद इन दी वर्ल्ड आए, एक कंट्री दूसरे कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में लगा। हमने इतने न्यूक्लियर आर्सेनल्स बना लिए हैं कि मल्टीपल टाइम दिस इंटायर अर्थ कैन बी डिवास्टेटेड। व्हाई? Because there is a cutthroat competition between each and every nation at any cost, even at the cost of destruction of others. Because there is a self-centered compartmental attitude which was with the nature, now it is within the human race in form of the various countries. So today the nuclear threat is equally applicable on any part of the earth. Now come inside the nation, the various sections of society. This is my right, this is that right, I want my right at any cost, even at the destruction of the others, or otherwise I will destroy other entities. It led to terrorism. Now 80% of the countries are one way or the other are affected by terrorism. Even those countries like New Zealand and Australia, which were just a few years back, were considered that they are not at all affected by terrorism. Now they have also got affected. अब ये self-centered compartmental attitude सिर्फ यहीं पे नहीं रुका,
ये और नीचे आया, सोसाइटी के अंदर डिवीजन हुआ, फिर वही सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड फैमिली में आया, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली टूट कर न्यूक्लियस में हो गई, फिर न्यूक्लियस फैमिली में एक व्यक्ति दूसरे से अलग हो गया. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस राइट टू द कॉस्ट ऑफ द अदर, वेदर इट्स द हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, मदर, फादर. और आपने देखा आखिर में व्यक्ति अकेला रह गया, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी आ गई. और यह अकेला रह जाता है, यहां तक भी बात खत्म हो जाती, वो फर्दर डिवीजन होता चला गया एंड द पर्सन हैज बिकम विक्टिम ऑफ schizophrenia, psychic depression and split personality. आज यूएस में जगह जगह गोलियां चल रही है, क्या है? स्प्लिट पर्सनालिटी, schizophrenia. तो यूं आप समझिए कि एक ऐसी व्यवस्था जिसने मनुष्य के प्रकृति से संबंध से लेके मनुष्य की इंटरनल साइकोलॉजी तक सब कुछ तोड़ दिया, काट दिया, बांट दिया, और फिर यह कहा कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन सोल्यूशन देने वाले हैं. It's like a glass of water you are having, and every day you are putting a little bit of red chili in that, and you are expecting that after a few months it will become a sweet nectar. No, it will become a poison. That's what happened. अब जब पूरी दुनिया इस दिशा में जा रही है, आज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात आती है, ये थ्योरी प्रिवेल्ड है, और आप देख रहे हैं कि इनटॉलरेंस पूरी दुनिया में ऐसी बढ़ती जा रही है कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने की बात है. एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड आर वोइंग दैट आई वांट माय डोमिनेशन एट एनी कॉस्ट. अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? अगर आज आप ये कहें कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एम्पायर एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, तो अगर एक कहता है कि दुनिया में खलीफत होनी चाहिए, मेरा ही रूल होना चाहिए, तो दूसरा भी तो यही कह रहा है कि सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स से लेकर जापान तक एक ही टाइप का कल्चर होना चाहिए, यूथ एक ही टाइप की ड्रेस पहन के डिस्कोथेक और बार में उसी ढंग से शराब पी के झूमना चाहिए, बिल्कुल उन्हीं गानों पर, उसी कल्चर पर, वही वेशभूषा पहनकर जो हम चाहते हैं. तो इन अ वे बोथ आर फाइटिंग फॉर देयर ओन डोमिनेंस ऑफ देयर ओन कल्चर. नोबडी इज रेडी टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द अदर्स. अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से इंडिया से सोल्यूशन कैसे निकलेगा. जैसे आपने बहुत बात सुनी होगी, आजकल इंडिया में भी आता है कि साहब टॉलरेंस, इनटॉलरेंस. हम ये कहना चाहेंगे, वाकई हम टॉलरेंस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि टॉलरेंस इज अ नेगेटिव वर्ड. टॉलरेंस मीन्स आई डू नॉट लाइक यू बट आई कैन टॉलरेट यू. आई कैन हेट यू बट स्टिल आई कैन टॉलरेट यू. It doesn't signifies a positive connotation. Our fundamental principle is mutual respect, not tolerance, mutual respect. But unfortunately, all the concepts which has emerged from West cannot have mutual respect. How? For example, in the Indian system, if we are having so many gods says culture, हमारे बहुत सारे अवतार हुए हैं, यदि कोई ये कहे कि भाई जीसस क्राइस्ट भी अवतार थे, ईश्वर के मैसेंजर थे, हमें कह सकते हैं, हम आपकी बात का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बहुत हुए और आगे भी होते रहेंगे. जो मैं फर्स्ट पॉइंट रखा था, जगत, ये गति लगातार चलती रहेगी. इंडियन कल्चर बिलीव्स इन द साइक्लिक प्रोसेस. तो ये अनंत काल तक यह काल की चक्र की गति चलती रहती है. इसमें कोई नहीं कहेगा कि देयर इज वन एंड. ऐसे सर्किल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. उसी ढंग से यह गति अनादिकाल तक चलती रहती है. तो हो सकता हुए हो, आप हुए हो, तो हमें इस बात को लेकर आपकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी धर्म के बारे में. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर, दैट इफ क्रिश्चियन सेज दैट आई कैन हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर मुस्लिम्स, इट मीन्स उसको प्रॉफिट मोहम्मद के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट्स द क्रिश्चियनिटी की भाई जीसस क्राइस्ट के बाद कोई हुआ ही नहीं. सो दे कैन ओनली टॉलरेट, they cannot have mutual respect. On the contrary, इंडिया में हम तो कहते हैं साहब, जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित उमा रामा ब्रह्मा. हमारे यहाँ तो अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत काल से होता रहता है, अनंत बार जन्म लेते हैं और पुनः जन्म लेते हुए वही भगवान के अवतार भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न स्वरूपों में आते रहते हैं. तो हमारा तो इतना वर्सेटाइल सिस्टम है. जैसे बहुत से साइंटिस्टों ने अब ये बात कही है कि ये पैरेलल यूनिवर्स, परपेचुअल कंटिन्यूएशन ऑफ द यूनिवर्स,
परपीचुअल डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स की जो थ्योरी है, ये तो सिर्फ हिंदुओं की प्राचीन थ्योरी से मैच खाती है, इंडियन प्राचीन थ्योरी से मैच खाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम इज वॉयेजर। उस वॉयेजर पर जो संदेश इंस्क्राइब्ड है, द मैसेज, द कॉस्मोलॉजिस्ट विच हैज डिजाइन दैट मैसेज वाज कार्ल सेगन। और कार्ल सेगन का वीडियो जाके देख लीजिए, वो क्लियर कट कहता है ओनली द एंशिएंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। और इसीलिए जो वर्ल्ड की, अब मैं इस पे आ रहा हूं कि हम मॉडर्न वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट होंगे। आप कहेंगे साहब ये आपके पास सारा कॉन्सेप्ट तो है, पर इसमें टेंजिबल एलिमेंट क्या है? अब मैं आपको टेंजिबल एलिमेंट बताता हूं। अभी तक की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जो खोज हुई है साइंस की, दैट इज हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। सर्न लेबोरेटरी यूरोप में खोजी गई, यूरोप। अब आइए उस हिग्स बोसॉन का नाम दो साइंटिस्टों के नाम पे, पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड एंड सत्येंद्रनाथ बोस ऑफ इंडिया, वहां से वर्ड बोसॉन लिया गया। मजे की बात यह है कि सन लेबोरेटरी की लॉबी में आप जाइए तो डांसिंग करते हुए शिवा की, नटराज की मूर्ति लगी है, और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लगा है, जिसमें वो कहते हैं द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब बताइए, हमारा जो विचार है, जिसको आप सिर्फ ये कहते थे कि ये तो फिलॉसफी है, ये तो थियोलॉजी है, ये तो माइथोलॉजी है, ठीक है, एट द मोस्ट आपकी एक कल्चरल थिंकिंग है। अब आज वो बता रहा है कि टेंजिबिलिटी इन द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरी उसके साथ कनेक्टेड। और हम, ऐसा नहीं कि साइंस के साथ हम सबसे पहले, हम अभी आके कनेक्ट। एवरीबडी नोज दैट जेसी बोस हैज फर्स्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, बट उस समय हम पेटेंट नहीं करा पाए, तो द क्रेडिट हैज गॉन टू एडिसन। अदरवाइज दोनों ने साइमल्टेनियसली खोजा था, तो भारत से कोई आकर यहाँ यूएस में पेटेंट नहीं करा सकता था, वो नहीं हुआ। इवन आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ सर सीवी रमन थे, जिनको फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला, हम सभी ये कहते हैं कि he was the first Indian to get the Nobel Prize of Physics, but this is not full truth, this is half truth. He was not just the first Indian, he was the first non-European, first non-white to get Nobel Prize in any fundamental branch of science. तो आप सोचिए, फर्स्ट प्राइज से लेके लेटेस्ट डिस्कवरी तक साइंस में हम क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं आगे। अब आपका जो साइंटिफिक अचीवमेंट होता है, इस पे आपके कल्चरल इथॉस कैसा इंपैक्ट डालते हैं। आप जिस आइडियोलॉजी से निकलते हैं, जिस कल्चरल मूडिंग से निकलते हैं, वो क्या इंपैक्ट डालता है, वो आप देखिए। आज वर्ल्ड की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज में, मैं उनके सबके नाम रिपीट नहीं करना चाहता, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, पेप्सी, बहुत सारी कंपनीज में भारतीय टॉप पोजीशन में पहुंचे हैं। वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है। आई रिमेम्बर उस समय अटल जी के समय में भीष्म अग्निहोत्री जी को उसी कॉन्सेप्ट के तहत पहली बार भारत सरकार ने एम्बेसडर एट लार्ज बनाया था। और वैसे तो मैं एक पर्सनल भी 2002 में मैं पहली बार भीष्म जी की गाड़ी में बैठ के उनके साथ गया था, तो मैंने व्हाइट हाउस, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और ये सारी चीजें देखी है। आज इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, बट उसका कंट्रीब्यूशन देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। यूएस में आप देखिए एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन, और वो कंट्रीब्यूशन टेंजिबल होके आज की ग्राउंड रियलिटी में कहां से आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इन 2008 आई वाज इन यूएस in that ACYPL program, that is American Council for Young Political Leaders. That was the first term of Barack Obama when he was contesting for election. और मुझे आज तक याद है, आप में से कोई जाके कंफर्म कर सकते हैं, आई थिंक इट वाज आइदर 11th or 12th of September 2008. He was addressing a crowd in North Carolina, and you know what word he has used in 2008? We have to make our children work hard, because in the coming years we have to compete with Beijing and Bangalore. आप देखिए, बीजिंग और बेंगलोर से कंपीट करना है, हमारे बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन उस जमाने में समझ में आने लगी, यानी इंडिया का एक कंपैरिजन समझ में आने लगा इन हार्डकोर टेंजिबल
you can say realistic economic and technological advance. तो हमारे पास कॉन्सेप्ट भी है, हमारे पास बैकग्राउंड भी है और हमारे पास टेंजिबल डिलीवरी भी है. बट एक चीज हमारे पास है जो किसी के पास नहीं, और जो हमें जगत गुरु बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, वो क्या है? वो है एक्सपीरियंस. विच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस? देखिए, हर कंट्री या हर बड़ा कंट्री एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक थॉट देता है, एंड दे ट्राई टू से that this is a one size fit idea for everybody. Now this thought will dominate the world. But in a short span of time or in a slightly larger span of time, वो खत्म हो जाता है. जैसे colonization हुआ after industrialization. कब शुरू हुआ? It matured in 1750, around 1750. और 150 साल के आसपास चला. 1917 आते आते कम्युनिज्म ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया. सो दैट आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट इज नाउ द फाइनल डिसाइसिव फैक्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, कि हम कॉलोनीज बनाएंगे, उनको इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, द वर्ल्ड विल बिकम ए गुड प्लेस. वो आइडिया लेस देन 200 ईयर्स में दम तोड़ गया. अब ये बात आई कि इंडस्ट्रीज में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. नाउ द आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म, proletariat, bourgeois, thesis, antithesis, we will take over. Now the world will become a very good place to live. वो आइडिया 75 साल में दम तोड़ गया. देन ये आया कि वेस्ट का मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, कंज्यूमर सेंट्रिक, मार्केट ओरिएंटेड, इंडिविजुअलिस्टिक, which is inspired by the desire of attaining as far as possible maximum material achievement. बस यही अब एकमात्र फिलॉसफी है जो वर्ल्ड को रूल करेगी. नाउ द ग्लोबलाइजेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे. इनिशियली इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डे, देन कम्युनिज्म ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डे, नाउ ग्लोबलाइजेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे. इफ यू रिमेंबर, इन 1991-92 फ्रांसिस फुकुयामा has written a book, End of the History and the Last Man, in which he has used the word after the fall of USSR, when it was thought that the American principle of market and the global market is now going to be prevail for rest of the time in the world. That's why he has used the word end of the history and the last man. And he has said that West has proved that it is the best. Then he has used the word, now it is best for the rest to follow the West. हुआ क्या? केवल 25 साल चला. 2016 when Donald Trump took over, उसने क्या कहा? अमेरिका फर्स्ट, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट. अब दुनिया से कोई मतलब नहीं. फर्स्ट थिंग इज डन, ही हैज टेकन अमेरिका आउट ऑफ द पैसिफिक अरेंजमेंट. क्या हो गया? आपकी हर थॉट जो आप कहते हैं यही दुनिया को कल्याणकारी मार्ग दिखा सकता है, कोई 150 साल में दम तोड़ता है, कोई 75 साल में दम तोड़ता है, कोई 25 साल में दम तोड़ता है. हम जो थॉट बताते हैं, जो वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, तो हमारे पास थाउजेंड्स ईयर का एक्सपीरियंस. जैसे एक व्यक्ति होता है जिसकी आयु 20-21 वर्ष हो, तो वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, पर वो 60, 70 या 80 ईयर्स के व्यक्ति के बराबर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी चीजें एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है. उसी प्रकार ये रूल सिविलाइजेशंस पर भी लागू होता है. गलतियां करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, और हो सकता है कि प्रीवियस में, जिसको आज हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कहते हैं, कभी ना कभी उस अचीवमेंट को एक गलती के रूप में रियलाइज किया गया और उसे छोड़ दिया गया. आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं. ये सुपरसोनिक कमर्शियल जेट्स 78 में शुरू हुए, 2001 में खत्म हो गए. क्यों? बड़ा भारी अचीवमेंट था. कॉन्कॉर्ड प्लेन, रियलाइज किया गया कि बहुत डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट को. इन ए स्पैन ऑफ लेस देन 25 इयर्स इट्स रिमूव्ड. आप देखिए, जस्ट 50 इयर्स बैक क्या कहते थे कि गाय के गोबर से कोई खेती नहीं होती. मैकेनाइज्ड फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर, इन सब चीजों को, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज करो. आज कहते नहीं साहब, वो गोबर के, गाय के गोबर से खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग. पहले क्या कहते थे? ये हर्बल मेडिसिन, ये जड़ी बूटी से कोई इलाज होता है. आज क्या कहते हैं? नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाएंगे. तो जस्ट आपने देखा कि इन स्पैन ऑफ अ लिविंग जनरेशन, आइदर इन 50, 40 और इवन 25 years, our civilization, which
very, you can say, arrogantly says that whatever I have decided, whatever I have achieved is the final truth. की गलतियां रियलाइज हुई हैं. हमारे यहाँ क्या कहा गया है, हमारे यहाँ किसी चीज को फाइनल ट्रुथ नहीं कहा. इसलिए कहा गया है कि हमारे पास एक एक्सपीरियंस है जनरेशन से. वो एक्सपीरियंस क्या है? वो है ट्रेडिशन. आप कहेंगे ट्रेडिशन का क्या मतलब है? ट्रेडिशन का आपको एग्जांपल देता हूं. इफ यू आर ड्राइविंग ए कार फ्रॉम योर ऑफिस टू योर होम, एट वन पॉइंट ऑफ योर पाथ देयर कम्स अ ब्लाइंड कॉर्नर, और जैसे ही ब्लाइंड कॉर्नर पे आप गाड़ी को लेफ्ट टर्न लेते हैं, आप देखते हैं वहां पर एक बड़ा पैच होल है. तो यू स्टॉप योर कार, टेक अ कंटूर एंड देन गो ऑन. नेक्स्ट डे फिर ये होता है. जब तीसरे चौथे दिन ये होगा, तो ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ डे यू विल नॉट वेट टू लुक into that patch hole. After taking a left turn, you yourself will take your car slightly right, assuming that after that blind corner the patch hole has to be there, and now you have become unscientific, because somebody will say you have not perceived, you have not analyzed. Then why you have taken decision? Because the decision is not governed by immediate movement. It was an experience of 4 or 5 days which is guiding you that do not waste your time and energy in doing this. In the same manner, certain glorious traditions of the Indian culture are nothing but the experiences of the generations, experience of the centuries, which our society has felt. And now, gradually, the modern world is also reconciling, or you can say finally coming to the conclusion that several things which we were propagating, whether it was the natural way of life, whether it was the herbal medicine, whether it was the organic farming, whether it was yoga or other things, now they are coming to a conclusion that these things are going to be the guiding principle for the years to come. तो अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो रिजल्ट हमारा है, इस रिजल्ट से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को हम कैसे गवर्न कर सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम गुरु. आई विल गिव यू जस्ट वन एग्जांपल व्हिच इज हैविंग इंपैक्ट ऑन बोथ योर पर्सनल लाइफ टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन. आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है. उस जमाने से 30 साल पहले से देखिए, व्हेन इराक ट्राइड टू एनेक्स कुवैत, चेकोस्लोवाकिया का इन्वेजन हो, या हिटलर ट्राइड टू annexation of Poland in Second World War, and so many things. In the last 1 century, the entire geopolitics was guided and motivated by 3 principles: annexation, subjugation. If not annexation, then subjugation. And if not subjugation, then at least domination, whether in the form of NATO, CENTO, SEATO, whatever it is. अब आप देखिए, क्या कहीं पर भी realistic coexistence है? No. Then how the coexistence in the entire world is possible? अब इसका आप उदाहरण देखिए. When भगवान राम conquered Lanka, has he done annexation? वो अयोध्या के राज्य का हिस्सा बना सकते थे? No. Then he could have appointed any of his deputy to rule there. अपना कोई वाइसरॉय अपॉइंट कर सकते थे. That is subjugation. नो. चलिए, तो कम से कम एक ट्रीटी साइन करवा सकते थे कि भाई आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा. दैट इज डोमिनेशन. वो भी नहीं किया. केवल वहीं के एक लेजिटिमेट है, एक जो उनका उत्तराधिकारी था, उसको स्थापित कर दिया और कहा कि यू डू योर वर्क. आवर्स इशू वाज जस्ट टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल. अब आप आइए, दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, मेजर कंट्री, मेजर पावरफुल कंट्री which never went for invasion. And we were the only culture which was not having concept of conversion. और यहां पे मैं एक और बात कह दूं, हमारे यहां बहुत से ऐसे वर्ड हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड इंग्लिश में है, उसका ट्रांसलेशन क्या है? लोग कहते हैं हिंदी में बेरोजगारी. बेरोजगारी हिंदी का वर्ड नहीं है, तो फारसी भाषा का शब्द, उर्दू में है ये वर्ड. संस्कृत में बेरोजगारी नाम का कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि बेरोजगारी जैसी चीज थी नहीं हमारे यहाँ. एवरीबडी वॉज हैविंग परमानेंट व्यवसाय.
तो अब मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा डेवलपमेंट का बेंचमार्क क्या था, हमारा जियो पॉलिटिक्स का बेंचमार्क क्या था, वो कैसे हमारे वैल्यूज से मोटिवेट होता। अब आप आइए वही चीज आप देखिए अपने, मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। जो आप कहेंगे नहीं हम फॉरेन में गए तो थे, तो गए तो हमने क्या किया। देयर इज ए कंट्री ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, द नेम इज कंबोडिया। इट्स एंशिएंट नेम इज कंबुज, जो कंबू से उत्पन्न हुआ। क्यों? कंबू ऋषि ने जाकर वहां पर लोगों को शिक्षित किया था, इसलिए उसका नाम कंबुज पड़ा। When Kambu Rishi landed on the floors of Cambodia, उस समय वो लोग ट्राइबल थे, they thought some foreign invasion has taken place. So they come with their entire army and well equipped with their whatever weapons they were having, the primitive type of weapons. Then he said that I am not here to conquer you. We are here to just talk and teach to you. तो उनके राजा और रानी आए, तो राजा as it was expected, they were not wearing the proper clothes. तो सबसे पहले कंबू ऋषि ने उनकी रानी के कंधे के ऊपर जो अपना एक उत्तरीय वस्त्र होता था, जो ऋषि लोग ऊपर पहनते थे, एक धोती और एक ऊपर आते थे, वो उनके कंधे पे रखा और कहा कि हम सिर्फ प्रेम के साथ आपको कुछ जो रियल ट्रेजर्स ऑफ नेचर है, रियल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर है, वो बताने के लिए आए। और हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारी बात पूरी मानिए। और वहां से उनको संस्कारित किया। और आज भी आप देखिए कंबोडिया की पूरी रेस वही है, कुछ नहीं बदला है, केवल थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। वही देखिए, यूरोपियंस लैंडेड इन यूएस, कोलंबस, एंड व्हाट हैपेंड? कहां है आज रेड इंडियंस? नेटिव रेड इंडियंस आर फिनिश्ड, दे आर फिजिकली एलिमिनेटेड। कैप्टन जेम्स कुक लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, वेयर आर द नेटिव ट्राइबल्स? दे आर वर्चुअली एलिमिनेटेड। ये एक अंतर है कंबू और कोलंबस का। This is the significant difference between how we look at the geopolitics and how they look at the geopolitics. Now, come to the personal level. अब आप ये बताइए, भगवान राम 4 भाई थे और चारों में संबंध क्या है? संबंध ये है कि एक पिता के एक वचन पर सारा राजपाट छोड़ के वन में जाने को तैयार। इन कंट्रास्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहां भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता है। भाइयों में क्या प्रेम है कि यदि एक भाई वन में जा रहा है तो दूसरा भाई लक्ष्मण कहेगा मैं वन में जाऊंगा। अब तीसरा भाई भरत, जिसको शासन दिया गया, कहीं दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल है कि शासन दिया गया, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, वो लौट के आया और जाकर अपने भाई की खड़ाऊ लेके आया और लाके वहां पे गद्दी पे रख के थाली में खड़ाऊ लेके आके उसने शासन किया। ये 4 भाइयों का आपस का रिलेशन और आपकी जो संतान है उसका आपके साथ रिलेशन। यही एक दूसरी भी संस्कृति है, उसमें भी 4 भाई हुए, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने बाकी 3 का कत्ल कर दिया, शुजा, मुराद, दारा का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया और इतने पे भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस, तो अपने एल्डर ब्रदर दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी फेथ को मानने वाले हो, घर में क्या चाहते हो? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई या सुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब जैसे? तो मैंने सिर्फ ये कहा कि फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ टू जियोपॉलिटिक्स द आंसर लाइज इन इंडियन। मैंने आपको बताया कि द टेंजिबल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी, जब से 2014 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार बनी, तो जानते क्या हुआ? दिस वाज नॉट जस्ट अ वोट फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, इट वाज फॉर द चेंज ऑफ द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल चेंज क्या आ रहा था? कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल चेंज ये था कि अब हमें डेवलपमेंट को एक अलग पैराडाइम पे ले जाना। बिल्कुल मैं हार्ड कोर सब्सटेंटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर हमारे केवल 30-40% लोग बैंकिंग सिस्टम से थे तो हम क्या इकोनॉमिक सुपर पावर बने? अब ऑलमोस्ट 100% हो गया। जब मोदी जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि अभी तक एक सेक्शन है, दूसरे सेक्शन को नहीं देना, अब सबको देना है। इसीलिए उन्होंने अभी जो लास्ट हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव थी उसमें क्या कहा? तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण, मींस अपीजमेंट नहीं, फुलफिलमेंट, एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट। फिर जो 46 करोड़ जनधन अकाउंट बने, दिस वाज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन।
फिर उसके बाद उससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से टेक्नोलॉजी का यूज करके सब्सिडी ट्रांसफर करनी शुरू की। फिर हर व्यक्ति को मकान दिया, शौचालय दिया, और कोविड काल में अनाज दिया। आयुष्मान भारत में जो सबसे गरीब आदमी की रिक्वायरमेंट मेडिसिन होती वो दी। यानी सबसे जो ग्रास रूट लेवल पे है, अगर उसको बेसिक नीड ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी तो ना दीनदयाल जी का अंत्योदय सफल हो सकता है, ना स्वतंत्रता की सार्थकता हो सकती है। अब इसके बाद क्या आता है, जो आपने गरीब व्यक्ति को दिया तो, पर उसके साथ उसको कुछ सिंबॉलिक सम्मान भी चाहिए, उसको दोनों चीजें चाहिए, उसे रियलिस्टिक भी चाहिए और उसके साथ उसको सम्मान का सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। तो आपने अभी देखा द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, फर्स्ट टाइम अ ट्राइबल, एंड दैट टू अ ट्राइबल वुमेन is all set to become the president of India. अब आप ये बताइए, this reflects the true democracy. This is the emergence of the, or the giving a proper respect and recognition to the lowest most section of the society, most downtrodden section of the society, most leftover section of the society. इसको वैसे भी समझ लीजिए, मैं उस पर आ रहा हूं। अरे भाई, भगवान राम का राज्याभिषेक सीधे नहीं हुआ था। निषाद राज का राज्याभिषेक, सुग्रीव का राज्याभिषेक, शबरी का सम्मान, जब वनवासी गिरवासी समाज के सभी तबकों को, चाहे वो अपने को कितना कमजोर समझते हो, जब सबको सम्मिलित लेकर सबको शक्ति देनी थी, तब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो राम का मंदिर जब बन रहा है तो उससे पहले समाज के सभी वंचित, गरीब, निर्धन, लेफ्ट ओवर लोगों को सबको सम्मान और सबको स्थान मिलेगा, उसके बाद ही ये चीज पूर्ण। अब आप आइए उसके बाद, आप कहेंगे साहब आपने नीचे दे दिया एट द टॉप मोस्ट लेवल। तो भाई हम वो कंट्री थे जो मिसाइल बना सकते थे पर असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते। हम चंद्रयान बना सकते थे, फाइटर प्लेन नहीं बना सकते। डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? इट साउंड्स इलॉजिकल। We were never in such a situation that we cannot make it. We were not trying to make it, or we were deliberately not making it. तो डिफेंस प्रोडक्शन में मोदी जी ने इस देश को आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की, और आज कम से कम सैकड़ों ऐसे डिफेंस आइटम है जो भारत सरकार ने तय कर दिया कि अब ये इंपोर्ट होंगे ही नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत का एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने वाला पहला देश फिलीपींस बना है। ये कितना बड़ा परिवर्तन है। आज असॉल्ट राइफल्स ही नहीं बन रही हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल भी हम सेल्फ प्रोडक्शन बना रहे हैं, और वर्ल्ड के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस का भी भारत को एक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना बड़ा चेंज है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सिंस आई बिलोंग टू यूपी, अब जो दो डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, एक यूपी में और एक तमिलनाडु में, तो जो यूपी का डिफेंस कॉरिडोर है, ब्रह्मोस का एक हिस्सा उसमें भी बनेगा, एक हैदराबाद में भी बनेगा। तो आप सोचिए, वो उत्तर प्रदेश जहां कुछ साल पहले तक कट्टे बना करते थे, कंट्री मेड पिस्टल्स, आज वहां ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी और वो एक्सपोर्ट होगी। कितना बड़ा चेंज आने की स्थिति हुई। और अब आप देखिए कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कितना बड़ा चेंज है। आज यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड के जितने बड़े कंट्रीज हैं, आप ईमानदारी से सोचिए, किसी की वो कैपेसिटी है कि दोनों से बात कर सके? अगर शी जिनपिंग बात करेंगे तो पुतिन उनकी बात सुनेंगे, जेलेंस्की नहीं सुनेंगे। बिडेन बात करेंगे तो जेलेंस्की सुनेंगे, पुतिन नहीं सुनेंगे। मगर मोदी जी की बात दोनों सुन रहे हैं, समान रूप से सुन रहे हैं, और इंडियंस को वहां से सक्सेसफुली निकलने में, हम सबको निकालने में सफल हुए। यहां तक कि कॉमन सीज फायर तक हुआ। ये इस समय हमारी और हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिप्लोमेटिक अथॉरिटी का एक एग्जाम्पल उभर के सामने आ रहा है, जो रियल टेंजेबल चीज जो आपको दिखाई पड़ रही। और सिर्फ 23,000 स्टूडेंट्स में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हमारा गलती से मारे गए कैजुअलिटी में, और वो भी तब जबकि वो ग्रोसरी शॉप में खड़े थे और बाई चांस वहां बम्बार्डिंग हुई और उसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो हम सबको सक्सेसफुली निकालने में सफल हो गए। दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले याद करिए, यमन की लड़ाई में सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया के प्लेन्स को ले जाने के लिए 2 घंटे के लिए बोथ द गवर्नमेंट और जो यमन के रिबल्स थे, उनमें सीज फायर होता, 2 घंटे के लिए एयरपोर्ट पे बम्बार्डिंग नहीं होगी, बीच में इंडिया अपने लोगों को ले जाए। और हमने अपने ही नहीं 19 देशों के लोगों को निकाला था, जिसमें इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश। तो मैंने सिर्फ ये कहने का प्रयास किया, ज्यादा लंबा वक्त न लेते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा
कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है, फिलॉसफी भी हमारे पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ के एलिमेंट्स भी हमारे पास हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी बेस हमारे पास हैं, जियो पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए वो भी हमारे पास है। और फाइनली मैं कहूंगा, हम क्यों विश्व गुरु हम ही बन सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि हम दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं जिसमें आज तक कोई क्रांति नहीं। You have never heard about the Indian Revolution. You have heard about Chinese Revolution, Russian Revolution, French Revolution, British Revolution, American Revolution. अमेरिका की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति। भारत में क्रांति नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो मूल जो केंद्रित करता है किसी व्यक्ति को, वो क्रांति पे केंद्रित नहीं करता है। आप सबने मकर संक्रांति के पर्व का नाम सुना होगा। मकर संक्रांति क्या है? द सन मूव्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ सन का मूवमेंट होता है। दैट इज कॉल्ड संक्रांति। तो हमारे यहां कहा गया है, योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज not to conquer others, but conquer yourself and get your downward tendency of your consciousness, reverse it to upwards. तो हमारे यहां इसलिए संक्रांति होती है, क्रांति नहीं होती। So in our most intense spiritual search, we are there for upliftment of the consciousness. In our social structure, the basic element is family, and that is a very strong knit, cohesive unit. Like I have given the example of Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan. अब किसी में भी देख लीजिए, हर चीज का आदर्श है हमारे। And the geopolitical aspect, we never went for invasion. At the cultural, religious cultural aspect, we never went for conversion. And in the modern technological world, we are the most ancient civilization and one of the most significant scientific achievements and entrepreneurs we are producing all over the world. And finally, we are not just the largest democracy of the world, we are the mother of the democracy. Because whether it is started with the Shastrarths during the Vedic age, Sabha, Samiti, Vidat और गण, वैशाली का गणराज्य हो, या चोल राज्य के दौरान जो ग्राम सभाओं में इलेक्शन होता हो, या जो कर्नाटक के भगवान बासवन्ना थे, उन्होंने जो अनुभव मंडपम शुरू किया, दैट वाज इन द 11th century, मच बिफोर द मैग्ना कार्टा इवन वाज कंसीव्ड, जिसमें लोग बैठकर डिसीजन लेते थे। तो हमारा जो बेसिक थॉट है, जो मैंने कहा ना, वेदों में शास्त्रार्थ, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि आपको रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर आपको अपना ओपिनियन देने की अथॉरिटी हो और फिर उसके बाद कंक्लूजन देने की बात हो। तो इसलिए हम हर थॉट में वी आर हैविंग एन अल्टरनेटिव मॉडल। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से, वो क्यों है? बिकॉज इफ आई आस्क यू नेम अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन विच द all the religions of the world are there, it is only India. The Zoroastrians which have vanished from their homeland, they are flourishing in India. Most prominent आपके अच्छे businessmen or scientists. Only country in the world in which the Jews never face any discrimination. Persecution, they rated that, forget about persecution, we never faced any discrimination. The only country in the world in which all sects of Islam are there. There is no Islamic countries having all sects of Islam. Only India is there. तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम ये क्यों हैं? बिकॉज आवर बेसिक फाउंडेशन इज अ हिंदू सिविलाइजेशन, जो कि एक वे ऑफ लाइफ है जिसको रिलीजियस कम्युनल कह के डिस्कार्ड किया जाता है। तो अटल जी की कविता की एक पंक्ति थी जो पुराने लोगों को निश्चित रूप से याद होगी और बीच में ने जरूर सुनी होगी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो फाइनल स्टेंजा है उसमें ये सम एंड सब्सटेंस है कि कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, और बनेगा तो वर्ल्ड को देगा क्या। उन्होंने लिखा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं करूं जग को गुलाम, मैंने सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय,
हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सो इसलिए मैं जहां से बात शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न साकार होगा। और आज जो, फिर एंड में एक और बात कह दूं, फर्स्ट जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी का पहला सूरज उगा, तो इस देश में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, अटल जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट डिकेड में मोदी जी के नेतृत्व में क्लियर मेजॉरिटी। इट मींस द डेस्टिनी इज आल्सो गिविंग ए डायरेक्शन दैट द 21st century belong to us, and if the 21st century is going to be the century of Asia, in Asia it is going to be the century of India, and in India it is going to be the century of BJP। ये 21वीं सदी के सूरज की पहली किरण और दशक का दूसरे दशक से हम तीसरे दशक में प्रवेश किए, वह यह संकेत दे रहा। तो हैव कॉन्फिडेंस एंड ट्राई टू प्ले योर रोल इन वट एवर पार्ट ऑफ ग्लोब यू आर, फॉर द betterment of the humanity and for the enhancement of the knowledge, which is the eternal inspiration of India। और हमारा वह लक्ष्य विश्व कल्याण का, जगत गुरु बनने का लक्ष्य इसलिए पूरा होगा because we are want to rise on the global scenario, not as superpower, because superpower dominates and guru motivates। So we are there not to dominate the world but to motivate the world। धन्यवाद। थैंक यू सुधांशु जी। आई थिंक वर्ड्स, शब्द थोड़ा कम पड़ जाएंगे। आपने इतने सारे विषय इतनी अच्छी तरह से उनको गूंथ कर जो माला बनाई, आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। भीष्म जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर विल टेक सम क्वेश्चंस। सुरेंद्र जी से कहिएगा कुछ कहने के लिए। सुरेंद्र जी से, सुरेंद्र जी यार, मैं तो बहुत गदगद हूँ इस जो भी सुना मैंने, पर सुरेंद्र जी पहले है। सुरेंद्र जी कहाँ है? डॉक्टर साहब, सुरेंद्र जी। यस, हाँ, यस, वी कैन हियर यू। ओके, कुछ कहिए। सुदर्शन जी से तो आई स्पीक quite often in our Indian channel and learn quite. Can you hear me? Yes, we can hear you. And it was a wonderful presentation. Learned a lot about your presentation, how the history you brought it from start with India and now what we are. And I think I do agree that I think the world will be in the future. And if India can do one thing, which I think BJP only can do, that there is only one law for everybody. There's Hindu law, Muslim law, or Christian law. This country is a Christian, but there's a democratic country. There's only one law. So I hope that India can do that soon. And I think that the BJP is the only party can do that. And it was very interesting that how you brought it from our old culture, and we are still on this old culture, and we are prospering it. That is the only way we can prosper it. It was a great enlightenment, and I really enjoyed your talk. सुरेंद्र जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, and he, hello, yes, we can hear you। ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन नेशनली, उसके लीडर हैं बहुत सालों से। तो ये हमारे यहाँ के इंचार्ज है, तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। तो मैं तो आप और पूछिए, ये और कई लोगों के हाथ खड़े किए हुए हैं। Yes, so Dinesh ji, I think you have any question or any comment? हाँ, सुधांशु जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। Was really wonderful. I just want to request you, can you explain the phrase which is passage to India, how it was originated in terms of the road built between Washington and San Francisco? That was really very informative. जरा उसके बारे में बताइए हम लोगों को। हाँ, अभी जब मैं, you are getting my voice? Yes, we can hear you। तो अभी मैं जब यूएस आया था लास्ट मंथ, तो ये मैंने सैन फ्रांसिस्को में और न्यू जर्सी में दोनों में ये विषय कहा था कि देयर इज ए लेस नोन फैक्ट अबाउट इंडिया। ड्यूरिंग 1840s, 50s एंड 1860s क्या था कि जब, आपको तो पता ही है कि शुरू में तो यूएस, ये आज का यूएस नहीं था,
ये न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट के आसपास का थोड़ा इलाका था, फिर मैक्सिको से नीचे वाला लिया गया, फिर जब वेस्ट कोस्ट भी यूएस के पास आ गया तो दे वर बिल्डिंग अ रोड फ्रॉम वॉशिंगटन टू वेस्ट कोस्ट, जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रहा, देयर वाज अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. Then the question was asked that why, what is the need of building this road? And the then government answered that it is required because for any trade route to India from the east side, the entire area of the Europe and Atlantic is controlled by Britishers. So they will never allow us to do trading from India through this route. So we have to get a chance of trading from India from the western route. And if we have to do from the west coast, then there is a requirement of road and rail from west coast to east coast. So, and that road was known as passage to India in the American East. तो आप ये समझिए कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या थी कि अमेरिका ने कहा कि अगर इंडिया से ट्रेडिंग नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, और ईस्ट से ट्रेडिंग का रास्ता ब्लॉक है और वेस्ट से ट्रेडिंग करनी है तो ये रोड बनानी जरूरी है. दैट्स व्हाई दैट रोड इज कॉल्ड पैसेज टू इंडिया. ये जस्ट इस बात का एग्जांपल है कि हम क्या थे, और जो मॉडर्न टेंजिबल वर्ल्ड में भी कहें, ये बहुत सी कंपनीज अपने वो इशू करती है ना, ये शेयर्स पब्लिक इशू. So if I ask you which was the first company in the entire world to issue the public issue, it was Dutch East India Company in 1600 something. और किसी कंपनी ने अगर वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड कंट्रोल किया है कभी, तो it was controlled by British East India Company. At one point of time they controlled 50% of the global trade. 50% of the global trade by one company. तो वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और अमेरिका में पैसेज टू इंडिया बता रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कितनी, और ये ज्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 150-200 साल पुरानी बात. थैंक यू दिनेश जी. सत्या जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन? Yeah. Namaste, Sudhanshu ji. It's a wonderful speech. The way you said it's not superpower, Vishwaguru. That's an excellent way observation in the and where India wants to take the world or its place in the world. The one question I have is, in light of the recent events, what do you think? Are we trying to catch up with China, or are we trying to catch up with Afghanistan? Is one comment was made with the way radical Islam and the Nupur Sharma case has been. Okay, that's fine. So what are your thoughts about it? Because I'm not saying against Hindus, against Muslims. I mean, for a country to come up, radicalism cannot have a place. And Because she's leaving out of town. थैंक यू सत्या जी. देखिए, कभी कभी क्या होता है कि भगवान की लीला भी अपरंपार है. देखिए, कुछ दिन पहले ही नूपुर शर्मा के एपिसोड में, डिस्पाइट द फैक्ट शी विथड्रू हर स्टेटमेंट, शी टेंडर्ड, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, एक्सप्रेस रिग्रेट एंड टेंडर्ड अपॉलॉजी, एंड स्टिल पार्टी हैज रिमूव्ड हर फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप. उसके बावजूद सर तन से जुदा वाली बातें चलती रही और इस ढंग के एक्ट भी हुए. और आप देखिए, भगवान की लीला इसी कहते हैं. उधर काली माँ का पोस्टर आता है, एंड द सेम लॉबी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलने लगती है. तो इतना जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये अपने आप में उनको एक्सपोज कर देता है. और उसके बाद नूपुर शर्मा ने तो अपनी गलती मान ली, रिग्रेट कर लिया, स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया. वहां पे महुआ मोत्रा अपनी बात पे अड़ी हुई है. यहाँ जो मैंने कहा वो सही है, नो रिग्रेशन, नो रिमोर्स. इसके बावजूद कहा जा रहा है कि साहब वो तो हर आदमी को हक है इंटरप्रिटेशन करने का. सच लॉपसाइडेड इंटरप्रिटेशन कम्स. तो उसका रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं. आई रिमेंबर यू ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड 1986 में शाबानो केस आया, तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टैंड लिया? नो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग फुल रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस बिलीफ. वी विल नॉट इंटरवीन इवन एन आयोटा. एनीथिंग रिलीजियस विल स्ट्रिक्टली बी गाइडेड बाय योर रिलीजियस बिलीफ. और अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपके अगेंस्ट में आता है तो हम उसको चेंज कर देंगे, बिकॉज रिलीजियस बिलीफ इज सुप्रीम. एंड 1987 क्या हुआ? सेम गवर्नमेंट सेड नो, राम टेम्पल कोई चीज बिलीफ से तय नहीं होगी. एवरीथिंग इज टू बी प्रूव्ड. इट हैज टू बी प्रूव्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, एंड यू हैव टू फाइट एज अ टाइटल शूट, एंड व्हाटएवर कोर्ट विल डिसाइड यू विल हैव टू अबाइड बाय दैट. अब इतना जब आपने डाइवर्जेंस किया था तो क्या रिजल्ट रहा?
हम 2 सीटों की पार्टी थे, वो 404 की पार्टी थे, 414 बल्कि हो गए थे। वो कहां पहुंचे? वो 44 पे पहुंचे 30 साल में, और हम 2 से 282 तक पहुंचे। क्यों? भगवान ने ही वो लीला दिखाई कि आपका एक तरीका ये है और एक तरीका ये। आज भी जो हुआ है, मेरा मानना है द पीपुल ऑफ इंडिया इज वाइज एनफ टू अंडरस्टैंड दैट विच टाइप ऑफ फोर्सेस trying to weaken India and which type of forces trying to strengthen India. तो मेरा मानना यह है कि people will give the answer, and I am pretty confident that the answer will be a befitting reply. Not it will trend जैसे वो 90 और 92 में एक paradigm shift आया था Indian politics में. We are all set to have another paradigm shift because of these type of events and these type of lopsided, I can say, nefarious politics by the so-called secular gang. Thank you. Thank you, Satyaji. SN, Mr. SN, I think you have to open your video so that we know. Yes, sir. My name is also Satya here. Satya Nimana here. Can you open your video so that we can see your face, please? Okay. I'm just walking here. That's fine. No problem. Okay, no, go ahead then. Forget it. Okay, let's I'm just walking. That's fine. So you have any question or observation? Wise, I totally understand and I totally admire the whole conversation, but I try to make it very short. I think we need to be a little bit more aggressive in protecting ourselves from Sanatan Dharma, from our rivalry forces which are acting against Sanatan Dharma. I think we need to be more proactive. I have a lot of things to discuss, but just wanted to let the speaker talk a little bit more about that concept. Thank you, sir. Thank you, Satyaji. जो आपने बात कही है, that is very appropriate. But एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए. We have made our Sanatan Dharma alive even during the 1,200 years of foreign dominance and 800 years of foreign subjugation. हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही, बट हमने अपने पर्सनल लेवल पे प्रिजर्व किया. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट कैन ओनली फैसिलिटेट, पर हमें अपने बच्चों को उन सारी चीजों को इनकलकेट करना होगा. आप एग्जाम्पल देखिए कि जो लोग हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी वो कर रहे हैं, वो तो अपने आप कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट तो नहीं उनको कह रही है कि हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी आपको करिए. हम अपनी फिलॉसफी अगर अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, हर चीज स्कूल से नहीं पढ़ाई जाएगी. मैंने एग्जाम्पल दिया, तब आई डू नॉट वांट टू यू कैन से पे एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी. हम में से कितने लोगों को गुरु और शिष्य वर्ड का मीनिंग पता? खूब कहा हुआ गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, बट द लिटरल मीनिंग ऑफ द गुरु एंड शिष्य वी वर नॉट नोइंग. अब हम जो फंडामेंटल्स जो है वो तो हमें अपने घर में अपने संस्कार में करना होगा. और जैसे मैंने कहा, पीपुल की अवेकनेस आई तो गवर्नमेंट चेंज हुई. गवर्नमेंट विल फर्दर बिकम मोर एक्टिव as and as they will become, people will become more active. मतलब मैं एक on the lighter note कहूं, after the 1992 demolition of the disputed structure, 93 का इलेक्शन हुआ यूपी में और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी. एसपी बीएसपी ने मिलकर सरकार बनाई थी. एट द टाइम मायावती वाज नॉट इंपॉर्टेंट, उस समय काशीराम वाज इंपॉर्टेंट. सो इफ यू रिमेंबर, एक नारा चला था यूपी में, पूरे इंडिया में फेमस हुआ था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम. तो उस समय रितंबरा जी ने एक स्पीच में कहा था कि ये नारा लग रहा है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम. इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अपनी एकता और शक्ति में कमी दिखा दी है. जिस दिन आप एकता और शक्ति वास्तविक दिखाएंगे, उस दिन नारा ये हो जाएगा, क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम. Thank you. Ravi Pathak ji, I think you have any question or? Yes. Namaskar, Sudhanshu ji. It was nice meeting you in Bay Area. And last month you came. My question was, actually you answered part of it already, which is that Supreme Court justice, they're giving these comments, which is so biased and so unreasonable. The two from a very high post of very responsible post. I mean, can't the government gives them some type of a not a memo or something, some
reprimand should be there, right, for giving such stupid comments. What happened, technically speaking, it was an oral observation. So it was nothing in writing. So if there is nothing in writing, technically government cannot do anything in writing. But as far as the oral observation on the moral aspect is concerned, you have seen that the 77 top bureaucrats, former bureaucrats, which were the chief secretary and DGP rank, and 15 former Supreme Court judges have written to the Chief Justice that these type of observations were not in good taste and they are not morally appropriate. So even the court itself, their fraternity itself has taken action because everything was oral. So the only onus was moral. So on the moral aspect, their own fraternity have raised the question. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. SK, can you please open your video if you have any question? Yes, please. Sudhanshuji, good evening. I'm calling from Bangalore. I was an economist at the World Bank in Washington for almost 25 years. I've always admired your, the scholarship that you have. I have a school here, and one of the two observations that I have, Sudhanshuji, where I need your advice, and I will contact you in Delhi, is I have already prepared all the textbooks which have been used by the children from pre-nursery all the way to 8th in not only physics, chemistry, biology, and given a platform. I want to bring this across to you at some point in time, because for us to become, we are Vishwa Gurus, but we are still buying books from the US and the UK, and we have IC, GSC, and all the other types of boards. That's one observation, and I will come to you. Please remember, my name is Shrij Kumar. The second I would request you is, when are you going to become the education minister, Sudhanshuji? Because we need somebody like you. Because, one of the things that we had when we had 1947 is we needed to see the commonality of Sanskrit and all the other languages. There is no effort going on in this. We are getting torn by languages. And so and we are attempting this in a very small way at the school. And we have found common words between Sanskrit and Kannada and Hindi in up to second standard, because we have bilingual education from pre-nursery to second. So Sudhanshuji, I won't take too much of your time, but I just wanted to thank you for this wonderful opportunity to hear you. And I've always admired you from a distance. And so please consider this, and we want to keep on getting your advice. Hopefully you'll become the education minister, because we want to get a new India happening. Thank you, Shrij Kumar. In this context, एक बात कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा ना, इंडियन लैंग्वेजेस और संस्कृत के बीच में कनेक्टिविटी क्या है। एक बार मैंने लेट सुषमा स्वराज जी से पूछा कि हाउ यू सो स्विफ्टली अडॉप्टेड द कन्नड़ लैंग्वेज व्हेन शी कॉन्टेस्टेड फ्रॉम बेल्लारी इन 1999 शी वाज गिविंग स्पीचेस इन कन्नड़। तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके हस्बैंड ने बोला, वो तो आज भी जीवित है, स्वराज कौशल जी ने, कि भाई कहा कि इसका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग है एंड देयर आर न्यूमरस संस्कृत वर्ड्स इन ऑल द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। तो इन्होंने उन वर्ड्स को पिकअप किया जो कन्नड़ के थे, संस्कृत के, और उसके बाद जो स्पीच थी वो देवनागरी लिपि में लिखी, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके बोलना शुरू किया और बड़ी क्विकली अडॉप्ट की। जैसे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आई वाज इन बेंगलोर व्हेन येदियुरप्पा वाज सीएम, राजनाथ जी वाज पार्टी प्रेसिडेंट। तो हम लोग एक मिनिस्टर की गाड़ी में बैठे, तो बाई चांस जैसे फ्लीट चलने को हुआ तो एक लेडी लेफ्ट साइड से आके वो ना आगे, वो थोड़ा सा वो घबरा गई कि वो आगे गई ना पीछे गई। तो ड्राइवर उससे कहता है वेगा वेगा। तो देन आई आस्क्ड द मिनिस्टर हु वाज सिटिंग विद मी दैट व्हाट डज दिस वेगा मींस क्विक। उसने कहा यस, वेगा मींस क्विक। वेगम। अब वेग शब्द तो संस्कृत का है ना, वेग का मतलब होता है तेजी के साथ। तो अगर आपकी संस्कृत की अंडरस्टैंडिंग है तो इंडियन लैंग्वेजेस के साथ कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि उन्होंने बोला। थैंक यू। शरद जी। You are on mute, Sharad ji. Can you please unmute? नमस्कार सुधांशु जी, बहुत सुंदर आपका वक्तव्य रहा। मैं आपको ऐसे भी देखते रहता हूँ। मैं मिर्जापुर और पटना बिलोंग करता हूँ और यहाँ टेनेसी यूएसए में हूँ, और पीछे आप देखेंगे कि ऑथर भी हूँ। सो मेरा ऑब्जर्वेशन क्विकली ये है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है सुधांशु जी, तो एक दो सुझाव है एज एन इंडियन अमेरिकन।
हमारा जो MA है डॉक्टर जयशंकर जी के अंतर्गत, उसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से जोड़िए और ईयरली 5-6 जो मेजर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे यूरोपियन यूनियन का एक दो देश, UK एंड अमेरिका, जो यहाँ पे आईवी लीग कॉलेजेस है, जैसे हार्वर्ड वगैरह हो गए, ऑक्सफोर्ड हो गया, इनमें हम सनातन स्टडीज और इंडिक सिविलाइजेशन का जो स्टडीज है वो कोई गोरे ना पढ़ाकर भारत के स्कॉलर्स पढ़ाए, और यहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं उनको हम बुलाए फेलिसिटेशन के लिए ईयरली जो भी हमारा अवार्ड होता है। तो इससे हम अपना व्यूज को ज्यादा फैलाएंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि कैलिफोर्निया में इन्होंने जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को ना मानते हुए जाति प्रथा पर इन्होंने स्ट्रेस दिया है, या जिस तरह से वोकिज्म फैल रहा है, और इतनी बड़ी हमारी इंडियन अमेरिकन बच्चे हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट एक 10-15 सालों में ऋषि शौनाक जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आएंगे। तो भारत का वो जो इकोसिस्टम है वो बन रहा है वेस्ट में, लेकिन देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट प्रोग्राम और सब कुछ छोड़ा हुआ है इंडिविजुअल पे, सिटीजन पे करने के लिए। देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि हमें जितने भी आईवी कॉलेजेस हैं वहां पे चेयर्स स्पॉन्सर करना चाहिए। इंडिया इज रिच इनफ टू स्पॉन्सर फ्यू $1 million, और उससे जो व्यूज आएगा, सनातन का व्यूज, इट विल कम फ्रॉम इंडिया रादर देन कोई गोरे जो है वो हमें पढ़ा रहे हैं हमारे धर्म के बारे में। तो यही कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शरद जी। आपका सुझाव काफी अच्छा है, और इस विषय पे जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात करेंगे। जैसे आपने कहा यहाँ पर एक सेंटर खोले जा सकते हैं या किया सकता, इनिशियल स्टेज पे आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में ये भी किया जा सकता है कि ऑन ए 3 years और 4 years और डेपुटेशन वहां से कोई ट्रेन टीचर आकर यहाँ की यूनिवर्सिटी के उस सेंटर को पढ़ा सकता है। तो जो आपने कहा कि हम पढ़ाएंगे ना, कि वो यहाँ तो ये स्थिति है ना कि जो वो लोग जिन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, उन्होंने संस्कृत के ऊपर पूरा व्याख्यान दे दिया। जी। So just for the everybody's काफी सारे सुझाव आ रहे हैं. I just have put my email there. So any सुझाव you have, please send that in writing into the email, so that if there is an action we can take in future, or we can consolidate just for discussion, maybe we can take that forward. Thank you, Sharad ji. Hardik Thakur ji, please. And thank you very much for giving me opportunity to speak. Sudhanshu ji, a very big fan of yours. I am from Ahmedabad, Gujarat, and I have seen almost all of your TV debates, including rewinding all of them on YouTube and everything. So I like the way you mix the cultural aspect, spiritual aspect, and politics. So first, there are two observations from my side. One was the similar from what Mr. SK suggested, that we should have one common education board for India, and all the the radicalization that happens in madrasas, and there is a separate madrasa board in India. So that should be looked into, because it is becoming a threat for the country as of now. And the second is there are a few laws in India which are pre-independent era. They were enacted before independence. So those laws also require some amendments, or they need to be made strict so that the criminals cannot go away easily. Like if I quote one recent example, that Mr. Raj Babbar, I just read few days back that he was guilty of an assault threat, but there was a case of 1994 or 1996. After 26 years, yeah, he got only 2 years of imprisonment. So and we should have, looking to the current demographic situation, we should prepare, we should make the laws for conversion and population control in that area also. So these are my observations. Thank you, Hardik ji. देखिए, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद एक महत्वपूर्ण काम ये किया है कि बाकी सरकारें आकर और एक्स्ट्रा लॉ बनाती थी। हमने 1500 रिडंडेंट लॉस को
रिमूव किया है। और कैसे कैसे लॉ चल रहे थे, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अमित शाह जी ने मुझे स्वयं एक बार पर्सनल टॉक में बताया था कि व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो 1965 की जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही थी, उस समय पाकिस्तान कुछ बैलून्स के द्वारा पैम्फलेट इंडिया के साइड में फेंक देता था और उसकी वीकली रिपोर्ट आती थी। एक ऑफिसर की ड्यूटी थी ये चेक करने के लिए कि इस हफ्ते में पाकिस्तान बॉर्डर से कोई बैलून के थ्रू कोई पैम्फलेट तो इंडिया में नहीं फेंके गए। बैलून की टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, पैम्फलेट बेचने की बात खत्म हो गई, ईमेल और इसका आ गया। इसके बावजूद 2005 तक वो लॉ था और हर हफ्ते रिपोर्ट आती थी कि इस हफ्ते कोई बैलून पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया, न पैम्फलेट छोड़ा गया। तब उन्होंने उस लॉ को चेंज किया। थैंक यू। जैसा एक बार मोदी जी ने बताया था, तमिलनाडु में चाय लाने के लिए एक रूल बना था, गवर्नर को टी किस तरह की मिलेगी उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंटेड था और वो लॉ में था। दिस वाज एज पर लॉ बाय द विधानसभा, फिर वो चेंज किया गया। थैंक यू। देश, मिस्टर देश। नमस्ते सुधांशु जी, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के जो आपने बोला। मैं एक न्यूज़लेटर लिखता हूँ दृष्टिकोण.com, तो वो काफ़ी डिटेल्ड और इंसाइटफुल होती है। अगर आपको मौका मिलेगा आप देखना। मेरा क्वेश्चन जो मैं जिस चीज़ को मैं जो बहुत मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि हमारा जो मोदी जी के आने के बाद बहुत कुछ बदला है और यहाँ भी एनआरआईज में भी काफ़ी एक बदलाव है। काफ़ी वो जानते हैं अब चीज़ों को। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा जो कंट्रोल है ना ओवर मीडिया, बोथ इनसाइड इंडिया मोर सो आउटसाइड, एंड द नैरेटिव दैट कंट्रोल ओवर द नैरेटिव, वो बहुत कम है और बहुत खराब है। जो कम्युनिकेशन हुई ड्यूरिंग CAA, NRC, फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट, वो बहुत ही खराब, बहुत ही ज़्यादा वीक थी। और मेरा ये मानना है कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रशिया और US का वो ले लें, टकराव ले लें, the only reason why Russia is being overwhelmed by US is because they have control over the communication and they don't. हमेशा लड़ाई कम्युनिकेशन से ही जीती जाएगी और जीती जाती है। हम वहाँ बहुत चूक कर रहे हैं। उसके बारे में क्या हो रहा है या आप क्या सोचते हैं हो सकता है? थैंक यू देश जी। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक मीडिया में भी अब ग्रेजुअल ट्रांजिशन आ रहा है। 90s की डिकेड में पोस्ट इस्लाम मदद मूवमेंट, वर्नाकुलर मीडिया में चेंज आ गया था और जो उनकी मोनोपोली थी लेफ्टिस्ट थॉट की, वो चेंज हुई और राइट वाले थॉट को, या जिसको हम नेशनलिस्ट थॉट कहते हैं, उसको एक स्पेस मिली। मगर वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के समय भी नेशनल मीडिया में टोटल उनका कंट्रोल था। मोदी जी की सरकार आने के बाद आपने देखा नेशनल मीडिया में भी उस थॉट का एक चेंज आया। अब ऐसा नहीं है, ज्ञान वापी से लेके हनुमान चालीसा तक पे बाकायदा इंग्लिश चैनल्स भी डिबेट करते हैं, जो कि बात अनथिंकेबल थी जस्ट 10 years बैक। अब क्या हो गया कि जितने लोगों को अब यहाँ ना उन जर्नलिस्टों को कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, ना TRP मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, दे हैव बिकम वर्चुअली जॉबलेस। तो ये जितना भी आउटसाइड इंडिया इकोसिस्टम था, अब वो सब जाके वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने लगे। और यहाँ पर जो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप लोग ज्यादा बेहतर होंगे, मैंने यूएस में आके महसूस किया कि यूएस के एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में एक प्रॉब्लम लेफ्ट लिबरल, जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल, उनके कंट्रोल की इसलिए ज्यादा है कि इंडिया में तो लेफ्ट का काउंटर एक राइट आइडियोलॉजी थी, इसलिए वो काउंटर कर ले गई। यहाँ तो देयर इज नथिंग लाइक राइट। स्टॉन्च नेशनलिज्म, कल्चर, एयर इंडिजिनस कल्चर जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो वो लेफ्ट है, वही लिबरल का लबादा ओढ़कर टोटल कंट्रोल कर लेगा। तो क्या हो गया, वो इकोसिस्टम उन्हें सूट करता था, तो उन्होंने, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इस समय जो वेस्टर्न मीडिया था आउटसाइड इंडिया, उसने तो इंडिया का इतना नेगेटिव चित्रण किया है। और ये आज से नहीं, जमाने से। आई स्टिल रिमेम्बर, शायद वो 26 या 27 जुलाई 2002 की बात है, मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में मैंने देखा 2 फुल पेज गुजरात के ऊपर, और वो पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया में पता नहीं क्या हुआ जा। तो अब मगर मेरा मानना है कि पहले वर्नाकुलर मीडिया थोड़ा डेमोक्रेटाइज हुआ, अब नेशनल मीडिया हो रहा है, तो अब एक इंटरनेशनल मीडिया भी होगा। बट आपने जो कंसर्न कहा है, आवर टॉप लीडरशिप इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट दिस। थैंक यू।
Ravindra Maharaj. Yes, I think we'll just take. 9 o'clock हमें दूसरी I know exactly. So, are you hearing me? Are you hearing me? I think there are many questions right now. I think if one last question you can take, okay, then rest. Sure. Are you hearing me? Yeah, we can hear you. All right, thank you. Namaskar, everybody. Sudhanshu Ji Pranam. I am from Trinidad, and first I want to suggest, and thank you so much. I think you have shown us a roadmap and a destination. I want to suggest that proper utilization of the wealth abroad by the diaspora needs to be looked at as a part of the strategy for Guru Parampara, for Vishwa Guru Jagat Guru. I could not be otherwise. And I want to suggest also that my Jahaji ancestors, that diaspora that's created by them through colonization and the sugarcane industry, and those are the first ambassadors of Vishwaguru, because we have come here in large numbers, even before Swami Vivekananda came to the West, which can be marked as the start of Vishwaguru or the restart of the Vishwa part of the Vishwaguru. So I want to suggest that there should be, we should also be in the line of your site, of Bharat's site. And I thank Vivek Ji for giving me this first opportunity I have in such a forum, and on behalf of my community. And we have certain needs to make us alive to that. And this discourse, this narrative, I think this civilizational narrative is so critical for us because we were so cut off. And as a matter of fact, Trinidad is considered, as people continue to say, this is Ramayana country. Ramayana is so much part of our inner person and the way we see the world. And therefore we see and connect with Vishwaguru and Bharat. That now has to be given strengthened by the narrative beyond just the rituals and the normal Katha discourse. Because this will excite the young people. I think there's a lot to offer to the March for Vishwaguru through us, through Mauritius, through Guyana, South Africa, and Suriname, and these countries. So that's the first thing I wanted to suggest. The second thing is that to understand that the diaspora is made of two sections. One is the NRIs, which has a greater access to Bharat because they have relatives alive and so on. We hardly have relatives that we know. We have relatives that we know, but we don't know them. So we have lost direct contact, and we need, therefore, an instrument, a platform for that direct contact. For example, some of the experiments, social experiments, and or socio-dharmic experiments we are doing, we need direct information to guide us. For example, we are using Pitri Paksh as a civilizational issue here. So we need some direct guidance. And I don't know, I heard that. Thank you, Ravinji. I think, yes, I did not mean to cut you off, but I think time is off. We took a little longer. And if I can just make one comment before we invite Dr. Purohit, at some time, I think we all know the map of India, we all know the geographical map of India, but many of us may not know the spiritual map of India, which is really the 52 Shakti Peeth, you can call it. That really makes up the spiritual map of India. Maybe sometime we can discuss about that with you if time permits. Vishnji, closing remark, and we can close today's program. तो कह रहे मुझे कह रहे हैं? Yes, भीम जी आप हैं. मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी. अच्छा. प्रणाम जी
सुधांशु जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञान बातें याद आई, तो इसलिए आप कभी कभी हमारे पास आ जाए करिए, अच्छा रहेगा. It will be more inspiring to all of us. So it was very good, very very good. और इसलिए मेरा प्रणाम सबको कहना, और मैं भी आऊँगा कभी तो बात करूँगा आपसे. Thank you. Dr. Purohit, do you want to say a few things? Sajid, it was very enlightening, and we are you what you're doing there in India, and also there is a governor of Punjab, and we are very proud of him that he's BJP, and I think we will be all proud of the leaders now. I think more young leaders, you can guide them, and so India will be in the different phase. And we are very proud of you all. What great job you're doing there, and thank you very much for giving us a lesson. Thank you. Thank you, Dr. Purohit. And apologies for people who could not ask the question. Maybe next time we'll see how it works out. Thank you, Sudhanshu ji, again, and this.